Hello, today's our lecture is bonding in crystals. Bondings are of such type: ionic, covalent, van der Waal, hydrogen and metallic. बॉन्डिंग का मतलब ये होता है कि हम एटम्स या आयंस की एबिलिटी वो एक दूसरे से जुड़े हुए रहें. दिस इज नोन एज बॉन्डिंग. डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्डिंग्स फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट्स. टुडे बॉन्डिंग इन क्रिस्टल्स एंड पर्टिकुलरली ऑफ आयनिक we are going to discuss. Bonding in crystals are of several types. This is ionic, covalent, van der Waal, hydrogen and metallic. But today's discussion is mostly concentrated on bonding in crystals, which is of ionic. So here is ionic bond and properties of ionic crystals. This will be our focus. हमें मालूम है कि जैसे NaCl होता है उसमें Na प्लस और Cl माइनस होते हैं और इनके बीच में आयनिक बॉन्डिंग होती है. तो इस आयनिक बॉन्डिंग को हम समझने की कोशिश करेंगे. ये कैसे होती है, इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं. बिकॉज़ जब तक हमें बॉन्डिंग का ज्ञान नहीं होगा हम उस क्रिस्टल को समझ नहीं पाएंगे, और जब हम क्रिस्टल को समझ नहीं पाएंगे तो उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में हमें आइडिया नहीं लग पाएगा. And the entire role of material science, solid state physics or condensed matter physics is that to understand a system, then its properties, so that it can be used for a common man. यही हमारा टास्क है. The difference between science and technology is science is the basic thing. We discover certain things. Technology is the applied aspect of science. So applied aspect of science में क्या होता है कि कोई भी साइंस की डिस्कवरी होती है, थ्योरी होती है, उसको प्रैक्टिकल यूज़ में लिया जाता है, अप्लाइड यूज़ में लिया जाता है. और हम किसी भी साइंस की थ्योरी को अगर यूज़ में लेना चाहते हैं तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, तभी हम उसको यूज़ में ले सकते हैं. Hope I am able to convey my message of ionic bond and properties of ionic crystals. ये solid state physics का मेरा lecture है, which is not only used in BSc classes but also in MSc classes. That is useful in UG and PG. At the same time, many question comes in the GATE exam, NET exam, CSIR, etc. So start with the definition. An ionic bond can exist between two atoms when one of them has as many valence electrons as are required by the other to complete the outermost valence orbit. ये क्या कहना चाह रहा है, इसको हम इस एग्जाम्पल से समझते हैं. This is sodium atom and this is chlorine atom. Sodium atom, this is 2 plus 8 plus 1, 11 is the atomic number, and in chlorine 2 plus 8 plus 7, that is 17. Okay, this is the nucleus. These are 2 electrons. Then in the next shell 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 electrons. And this is another electron, which is this one, 11th electron. Similarly, in chlorine atom, this is nucleus, 1 and 2 electrons in the K shell, then 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 electrons in the next shell. And in the outermost shell 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7 electrons. This is sodium atom and this is chlorine atom. Now what is happening? It has got 1 electron in the outermost orbit and it has got 7 electrons in the outermost orbit.
अगर ये वाला एक इलेक्ट्रॉन सोडियम का ये एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन एटम के पास चला जाता है तो इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में सोडियम में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। सिमिलरली जब ये इलेक्ट्रॉन इधर चला गया तो क्लोरीन एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट विद रेफरेंस टू स्टेबिलिटी ऑफ द सिस्टम। तो देखिए जब आयनिक बॉन्ड बन रहा है तो ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया, सो दिस हैज़ बिकम दिस सोडियम एटम बिकम्स सोडियम आयन, दैट इज पॉजिटिव। ये जब अब इसका एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो ये शेल ख़त्म हो गया और ये क्लोरीन में आ गया, सो दिस इज क्लोरीन नेगेटिव आयन। और ये वाला इलेक्ट्रॉन जब इसमें आ गया तो अगेन 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, सो इसकी स्टेबिलिटी आ गई and this is positive ion and this is negative ion, and the distance between the center of the two nuclei is r. So once again we will go for the definition of this, which will be more and more clearer now. An ionic bond can exist between two atoms when one of them has as many valence electron as are required by the other. इसके पास इतने इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हैं जितने इसको चाहिए, इसके पास एक एक्स्ट्रा है और इसको एक चाहिए। The other there to complete the outermost valence orbit, इससे outermost valence orbit पूरा हो जाता है। So this is the definition of ionic crystal and ionic bonding in this. Okay. Now the famous example of this is NaCl, which is shown here, and another is LiL. Okay. Now properties of this is perhaps this is not correct. Okay. So properties of ionic crystals, I have told you earlier, properties are very very important, by which we can use we can go for the application of this. Number one property, ionic crystals are strong, hard and brittle. They are very strong, NaCl etc. इसका रीज़न क्या है? Strong forces between positive and negative ion. इन दोनों आयंस के बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स है, क्योंकि अब इन्होंने एक दूसरे को अपने इलेक्ट्रॉन्स दे दिए हैं। जब कोई भी चीज़ दे दी जाती है आपस में, जब मिलान है इनका, तो इनके बीच में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन जाता है। इसी कारण से आयनिक क्रिस्टल्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग, हार्ड एंड ब्रिटल। द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज ionic crystals are generally insulators. ये कुचालक होते हैं और इसका कारण बहुत सिंपल है कि इसका एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन था वो इसने ले लिया, तो अब इस सिस्टम को देखिए, इस सिस्टम को देखिए, न इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन बचा है न इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन बचा है। जब फ्री इलेक्ट्रॉन सिस्टम में नहीं होता है देन डेफिनेटली कोई कंट्रीब्यूशन होता ही नहीं है इलेक्ट्रॉन का, तो वो इंसुलेटर्स होते हैं। So ionic crystals are generally insulators, and the reason behind is they do not have free electrons. Okay, this is very important property. Next is ionic crystals are normally transparent to visible light. जब visible light इनके ऊपर डाली जाती है ये transparent होते हैं। This is another very good property which will be used anywhere with reference to optics. Next is their dielectric constant changes with the frequency of AC applied. जब हम डाइलेक्ट्रिक सैंपल पर, आयनिक सैंपल पर जब AC अप्लाई करते हैं, ऐसी फ्रीक्वेंसी जो कि बदली जा सकती है, तो इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट चेंज हो जाता है। ये भी एक प्रॉपर्टी है जिसको काम में लिया जाता है। यहाँ पर हम इसको बहुत डिटेल में नहीं बता सकते हैं। इवन दैन वन मस्ट रिमेंबर दैट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट चेंजेस विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ एफसाइड लाइट AC applied.
So dielectric constant is a function of frequency in ionic crystals. And the last property, they are generally brittle. इसको हिंदी में कहते हैं भंगुर इन नेचर. मतलब इसको जब इस पर अटैक किया जाए इस तरीके के सैंपल्स को तो छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाते हैं. ये इस तरीके से खिंचते नहीं हैं. तो ये इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, जिसको हमने इन दोनों पिक्चर्स की सहायता से समझा है. नाउ व्हाट इज़ हैपनिंग, जब कोई भी सिस्टम बनेगा इलेक्ट्रॉन्स के आदान प्रदान से, तो इसका मतलब सिस्टम की कोई बाइंडिंग एनर्जी हो. बाइंडिंग एनर्जी मतलब बंधन ऊर्जा, जिसको कोहेसिव एनर्जी भी कहते हैं. तो उस कोहेसिव एनर्जी को हमें समझना पड़ेगा, जिसका डिटेल हमारा नेक्स्ट लेक्चर में आएगा. इस लेक्चर में मैं केवल आपको ये फार्मूला बताऊंगा. दिस V इज इक्वल टू n अल्फा ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r 1 माइनस 1 बाई n. Here this alpha is Madelung constant and n is the positive or नेगेटिव आयंस. जितने पॉजिटिव आयन है उतने नेगेटिव आयन है. इस पर्टिकुलर केस में n है and n is 1 2 3 4 etc. r is this. So this is a formula for the binding energy. This we will derive in the next lecture of ours, and this is very important. So what today we discussed is bonding in crystals, ionic, covalent, van der Waals, hydrogen and metallic, in which we are interested only in ionic today. So ionic में क्या होता है कि एक अपने इलेक्ट्रॉन को देता है एटम, दूसरा एटम उसको रिसीव करता है. एक हमारा पॉजिटिव आयन बनता है और दूसरा नेगेटिव आयन बन जाता है. और इस तरीके से इनके मध्य एक फोर्स डेवलप होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक, जो इनको बांधे रखता है. जब ये फोर्स इनको बांधे रखता है तो इसको तोड़ने के लिए, टू सेपरेट देम अपार्ट, हमें बाहर से एनर्जी देनी पड़ेगी. दैट एनर्जी इज नोन एज बाइंडिंग एनर्जी और कोहेसिव एनर्जी, हुज फॉर्मूला इज दिस, जिसको हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में डिराइव करेंगे. सो दिस इज ऑल अबाउट आयनिक क्रिस्टल्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज. Thank you so much.